My dear all, I am starting second part of first chapter. In previous video, I have discussed about business. मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें बिजनेस के बारे में मैंने बताया. In this video, I will talk about commerce and trade. Now, first you have to know about commerce. What is commerce? Because your stream is commerce. आप commerce पढ़ने जा रहे हो, आप commerce के student हो, commerce subject आपने select किया. Then first you have to know about commerce, and according to chapter also, you have to know about commerce. It refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and service from the producers to the consumers. It is very clear activities, and it is concerned transfer of goods and services from producer to customers. Now you have to know about producers. Producers किसको बोलेंगे, अन कंज्यूमर किसको बोलेंगे. देन ये आपका डेफिनेशन पूरे क्लियर हो जाएगा. प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस सम प्रोडक्शन, प्रोडक्ट जो कोई भी किसी तरह का प्रोडक्शन करता है उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं. नाउ कंज्यूमर हु कंज्यूम्स द मटेरियल गुड्स सर्विस, जो भी गुड्स सर्विस मटेरियल को कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर बोलते हैं. Now, it embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and service. It is known as commerce. Now, functions of commerce. What are the functions of commerce? First is removing the hindrance of person by making goods available to consumers from the producers through trade. Second is transportation removes hindrance of place by moving goods from the place of production to the market for sale. Third is storage and warehousing activities remove the hindrance of time by facilitating holding of stock of goods to be sold as and when required. जब कभी भी जरूरत पड़ता है फिर हम उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज और रख देते हैं और उस तरह से उस स्टॉक को खत्म करने के लिए हम उसे सेल करते हैं. ये हमारा कॉमर्स का फंक्शन है. ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, मार्केट में सेल प्रोडक्शन को आगे बढ़ावा देता है, आगे बढ़ाता है. एंड कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन से प्रोड्यूसर से लेकर के जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर उसे थ्रू द मार्केट, थ्रू द मार्केटिंग कंज्यूमर्स तक पहुंच जाता है और वो कंज्यूम करता है. नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द कॉमर्स आर. Fourth number, insurance removes hindrance of risk of loss or damage of goods due to theft, fire, accident. कॉमर्स में इंश्योरेंस भी होती है. जब ये इंश्योरेंस कराए जाते हैं तो जब वो प्रोडक्शन से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक आता है, इस मिडवे में, मिडिल में बहुत सारे डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. ड्यू टू थेफ्ट, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है एक्सीडेंट के कारण. नो नेक्स्ट इज बैंकिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ बिजनेसमैन फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस. बहुत तरह की एक्सपेंसेस भी होती है. नाउ एडवर्टाइजिंग रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय informing consumers about the goods and services available in the market. So you have to note down the functions of commerce so that after completing the chapter you can learn is easily and you can write it easily, because whenever question is will be asked, then question will be what are the functions of commerce, explain the functions of commerce. इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. नाउ कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था बिजनेस कॉमर्स और कॉमर्स के नीचे डाला था टू एक्टिविटीज. वन इज ट्रेड, अनदर इज ऑक्सिलरी ट्रेड. हम पहले ट्रेड के बारे में बात करेंगे. ट्रेड refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit. That means main objective is earning the profit. It is classified into two categories. One is internal trade, another is external trade. यहाँ पर ट्रेड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. One is internal, another is external. Now, what is internal trade? Internal trade takes place within a country. Internal trade, not external, not outsider.
इंटरनल, इंटरनल वर्ड है ही आता है, और ट्रेड है, इसमें ट्रेड विल बी टेकन, ट्रेड तो होगी, यहाँ आएगी आएगी, बट विद इन अ कंट्री, नॉट outside the country. Within a country, this type of trade is classified into two categories. यदि हम कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते हैं, इंटरनल ट्रेड करते हैं, देन दो टाइप्स के ट्रेड होते हैं, वन इज होलसेल, अनदर इज रिटेल. Wholesale trade refers to buying and selling of goods in large quantity, because wholesaling हो रही है, wholesalers buy goods in large quantities from the producers and sell them to the dealers. His services as a connecting link between the producers and retailer. ये आपको होलसेल ट्रेड के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली, आपकी इस चैप्टर की जब आ जाती है सिलेबस में तो पूछा जाता है कि ये जो बीच में जो चेन बनता है, होलसेलर जो चेन बना, वो किसके किसके बीच में चेन बनता है. दैट मीन्स यू शुड बी क्लियर, आपको क्लियर करना चाहिए कि प्रोड्यूसर एंड डीलर के बीच में होलसेलर रहता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करता है कोई प्रोडक्ट को, तो फिर होलसेलर के थ्रू अलग अलग जो सेलर्स होते हैं उनके पास आता है, फिर इससे भी छोटे छोटे रिटेलर के पास आ जाता है. दैट मीन्स यू कैन से प्रोड्यूसर एंड रिटेलर के बीच में ये लिंक कनेक्ट करता है, मिडिल मैन का काम करता है. नाउ नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड refers to buying of goods and services in relatively small quantities and selling them to the ultimate consumers. You know very well in your society, in your area, जहाँ कहीं भी आप रहते हो, ऐसे में छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, इसी को हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं. एक गुड सर्विस को लेते हैं, किन से लेते हैं, होलसेलर से लेते हैं, या तो डीलर से वहां से लाते हैं, लाने के बाद क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कंज्यूमर अपने अपने डिमांड के अनुसार, अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपना परचेज करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विस को लेते हैं. नाउ एक्सटर्नल ट्रेड. External trade between two or more countries. It is very clear if internal trade within the country, that means external trade out of the country. That means out of the country, that means more, maybe two or more than two countries are involved in this. सीधी सी बात है कि जब हम कंट्री की बात करते हैं विद इन द कंट्री, दैट मीन्स किसी भी कंट्री में होगी तो वो कंट्री होगी, और जब कंट्री के बाहर जाते हैं दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वहां पर कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, तब एक्सटर्नल ट्रेड हो पाएगी. यदि हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो अपनी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री, अपनी कंट्री से और किसी तीसरे थर्ड फोर्थ किसी कंट्री जा सकता है. एंड एक्सटर्नल ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. वन इज इंपोर्ट ट्रेड, export trade and interport. Import trade and export trade, first you have to know import, that means कोई ना कोई गुड्स हमारे कंट्री के अंदर आता होगा. इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्रीज देन इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड. जब हम किसी दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में सामान को मंगाते हैं, परचेज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंपोर्ट कंट्री. या कोई दूसरा कंट्री किसी अलग कंट्री से मंगाता है, यानी कोई भी कंट्री जब किसी दूसरे कंट्री से मंगाता है, उस कंट्री के लिए, वो मंगाने वाले कंट्री के लिए, ट्रेड करने वाले कंट्री के लिए वो इंपोर्ट ट्रेड हो गया. एंड वेन इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज, दैट मीन्स एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को सेल करता है, उस कंट्री के लिए, सेल करने वाले कंट्री के लिए वो कंट्री उसका हो जाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड. यदि कोई भी कंट्री, सपोज आवर कंट्री, हमारा कंट्री जो है किसी दूसरे कंट्री को सेल किया, तो हमारा कंट्री जो है क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहा है. क्लियर. एंड जो कंट्री एक्सपोर्ट करता है वो तो एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया, और जो एक्सपोर्ट कंट्री को करने देता है तो वो कंट्री कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहा है. यानी हम एक करने वाले जो भेजते हैं सामान, सेल करते हैं, सेल करने वाले दूसरे कंट्री को जो सेल करता है, तो करने वाला, सेल करने वाला कंट्री एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया. नाउ इंटरपोर्ट, where goods are imported for export to other countries. Suppose Indian firms may import some goods from America and export to service to the Nepal. इसे हम इंपोर्ट करते हैं. ये इंटरपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कंट्री, जिस कंट्री को मैंने सेल किया या प्रोवाइड किया गुड्स, वो कंट्री वहां पर अपना यूज नहीं कर रहा है, वो अपने लिए नहीं मंगाया, वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू गया, लेकिन वो किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है. अगेन आई रिपीट इट, यू नो वेरी वेल, इंपोर्ट मीन्स यदि हमारे कंट्री में आता है, एक्सपोर्ट मीन्स हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल होता है, इंटरपोर्ट मीन्स हमारे कंट्री से होता है, बट जिस कंट्री को हम कर रहे हैं वो कंट्री उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, वहां पर वो परचेज नहीं करेंगे, वो नहीं रखेंगे, वो उसके थ्रू कहीं दूसरे कंट्री चला जाता है. देन इट इज ए इंटरपोर्ट ट्रेड. नाउ
Auxiliaries to trade. All those activities which help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods are called auxiliaries to trade. An overview of these activities is given below. किस तरह के ये auxiliary to trade किया जाता है? क्या बताया गया? It helps in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. जब प्रोडक्शन होती है, किसी भी गुड्स का प्रोडक्ट बनता है, तैयार हो जाती है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी बीच में ये कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से हम उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाए या डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. दैट मीन्स connection, making the connection between production and distribution of goods. Now, there are some activities. One is transportation. यदि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं एंड कम्युनिकेशन, देन जहां प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर के वह डिस्ट्रीब्यूशन तक कब तक कंज्यूमर के पास चले जाए या तो रिटेलर के पास होलसेल तक चले जाए, तो वहां तक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का जो ट्रेड किया जाता है, it is called auxiliaries to trade. Banking and finance, you know very well, if production to be started, then need finance. पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है. Then banking and finance, insurance to cover the insurance, इंश्योर करना पड़ता है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ता है कि जो कोई भी एक्सीडेंट या किसी तरह से ठीक हो जाए, आग लग जाए, इससे सेव होने के लिए, किसी तरह का लॉस ना हो, उस लॉस से बचने के लिए क्या किया जाता है? इंश्योरेंस किया जाता है. नाउ वेयर हाउसिंग, दैट मीन्स इफ प्रोडक्शन आर मोर देन सफिशिएंट एरिया, या यू कैन से कि अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द मार्केट, जितना मार्केट का डिमांड होता है और कंट्रीज होते जाती है, एट ए टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट के लिए इतनी पॉसिबल नहीं हो पाती है एट ए टाइम कि वो तैयार कर ले. देन प्रोडक्शन को क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है. इट इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग. तो वेयर हाउसिंग पे खर्च किया जाता है, गोडाउन जिसे बोल सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं जमा करके रखा जाता है सो दैट कि जब डिमांड आएगी तो उसे आगे किया जाएगा. नो एडवर्टाइजिंग, गुड्स को मार्केट में, सर्विस को मार्केट्स में ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए, लोग सबके सब जाने के लिए एडवर्टाइज पर खर्च करने पड़ते हैं, प्रचार प्रसार पर भी खर्च करने पड़ते हैं. इट इज एडवर्टाइजिंग. नाउ you know very well, if business is there, then risk is there. Now, business risks refer to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties and unexpected events. बहुत ऐसे रीजन होता है जो सर्टेन नहीं होते हैं, अनसर्टेन रहता है. Uncertainties, it is a separate word. Due to uncertainties, सर्टेन नहीं रहता है, एक्सपेक्टेड नहीं किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड रहता है. तो इससे क्या होती है? लॉस होने की संभावना रहती है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मे बी डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट्स प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स या इंक्रीज इन कंपटीशन. यदि जो टेस्ट का डिमांड कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है वो टेस्ट आप उसे नहीं दे रहे, देन मे बी कि वो डिमांड आपका घट जाए, वो डिमांड आपका कैंसिल हो जाए, वो जो रिक्वायर्ड है, जो नीड्स है, वो आपको कैंसिल कर दिया जाए कि नहीं, हम अब इसकी मतलब जो टेस्ट का डिमांड हो रहा है वो टेस्ट नहीं है. देन ये इससे इग्नोर किया जा सकता है. ये कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस में एक रिस्क आ जाती है, पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से कि लॉस हो जाए. नो, व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क इज देयर, है तो, बट इसका नेचर क्या होता है? फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क arise due to uncertainties. Risk is an essential part of every business. It is sure कि रिस्क है तो वो तो बिजनेस में होगा ही होगा. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. रिस्क है, उसी रिस्क का रिवार्ड में जब मैं रिस्क कवर करता हूँ, रिस्क को देखता हूँ और उससे फाइट करते रहता हूँ कि आई विल ट्राई टू अवॉइड एवरी रिस्क सो दैट वी विल गेट प्रॉफिट. हम क्या करते हैं? प्रॉफिट पाने के लिए ही रिस्क लेते हैं, सो दैट कि जब रिस्क लेंगे तो हमारा बिजनेस जब आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होगा, फायदे होंगे. तो हम ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग. क्लियर?
Now, causes of business risk. There are many causes in the business. There are risks. You know very well. I told you also. मैंने कहा भी, आप जानते भी हो कि बिजनेस में रिस्क है, क्योंकि उसमें कैपिटल लगाना पड़ता है। एंड जब कैपिटल इन्वेस्ट किए तो कहीं ना कहीं हम ये श्योर नहीं कि हमारा प्रोडक्शन कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। देन व्हाट आर द कॉजेस? देर आर, फर्स्ट इज natural causes, human causes, economic causes, physical causes, and other causes. Just I am explaining in short. Natural causes you know very well. कभी कभी फ्लड आ जाती है। Now maybe कि सडनली मार्केट में किसी कारण से डिमांड रुक जाती है, मे बी ड्राउट आ गए, मे बी कंज्यूमर इतने सारे नहीं बन पा रहे हैं, या मे बी कि रेन के कारण वो डैमेज हो गया। इट मे बी नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस आर दोज कॉजेस मे बी human being do not like this type of production and making some difference among the production। वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन के बीच में अलग अलग तरह की डिमांड करने लगते हैं इंसान, तो वो कॉजेस के कारण भी बिजनेस में रिस्क आ जाती है। या तो वो अर्निंग बेस देखते हैं कि हमें कितना फायदा किसको सेल करने में हो रहा है, क्लियर। तो ये भी ह्यूमन बीइंग देखते हैं, या कौन सी सस्ते है, चीप है, कौन सा या महंगा है, क्वांटिटी क्वालिटी को भी देख करके ह्यूमन कॉजेस होती है, जो कि बिजनेस में रिस्क है। नाउ इकोनॉमिक कॉजेस, if I'm talking about economic causes, then there are clear, and if quality of the production and quantity of production is not good for the consumer, then it may be causes also। जब हम इकोनॉमिक कॉजेज की बात करते हैं, बिजनेस रिस्क में है जितने मनी लगा है, और जब वो खरीदता है तो खरीदने के बाद उसे वो चीज मिल पाता है कि नहीं, और वो उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसके बराबर आता है कि नहीं। इसके भी कारण है, या तो हम कम पैसे लगा करके क्या करते हैं, कभी कभी प्रोडक्शन को लो क्वालिटी की प्रोडक्शन बनाते हैं। फिजिकल कॉजेज में भी, if there is business and production are there, then in the productions maybe during the transportation, during the transfer, during the carrying, maybe physical problem also। हो सकता है कि वो डैमेज हो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या कैरी करने के दौरान, देन इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ द बिजनेस रिस्क। अदर कॉजेस ऑल्सो मे बी, आपने प्रोडक्शन जो बनाया, आपने लीगल जो भी चाहिए लीगली सारे सर्टिफिकेशन लिए, सब कुछ किया आपने, बट वो आपका जो लीगली प्रोसेस करना चाहिए वो आपने नहीं किया, समवेयर इस तरह के कॉजेज आते हैं। देयर आर मेनी अदर कॉजेज ऑल्सो ऑफ द बिजनेस रिस्क। बहुत अदर तरह के कॉजेज है जो बिजनेस में आता है। नाउ here is, if you want to start a business, then what are basic factors? सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देन आपका मेन फैक्टर क्या है, क्या बेसिक है जो आपको यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ द बिजनेस। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि हम बिजनेस करना शुरू करते हैं, किस लाइन का बिजनेस करें, किस तरह का बिजनेस करें, ये आप पर डिपेंड करता है। नो, फर्स्ट इज स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। आफ्टर डिसाइडिंग the line of the businessman must decide whether he want to set up the large scale or small business। कहाँ आप करना चाहते हैं, लार्ज स्केल या छोटा सा बिजनेस की बड़ी में कर सेटअप डालना चाहते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट। नाउ सेकंड इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इनटू फाइनलाइज टू फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस फॉर्म करेंगे, देन सोल प्रोप्राइटर, दैट मीन सिंगल पर्सन करेंगे, एक मालिक बनेंगे, या पार्टनरशिप मे बी टू और मोर देन टू फर्म और पर्सन मिलकर करेंगे, और मे बी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाएंगे। तो ये आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ऑन द बेस ऑफ कैपिटल, कि आप अकेला बना करके करना चाहते हो या किसी साथ मिलकर करना चाहते हो। लोकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, then first you have to select the location, in which location you want to start। the entrepreneur has to decide the place where the enterprise will be located। जब वो इंटरप्राइज तैयार होगा, कंपनी फर्म तैयार होगी, तो आप किस एरिया में करना चाहते हो। बिफोर टेकिंग द डिसीजन ही मस्ट फाइंड आउट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। जब आप किसी लोकेशन में अपना बिजनेस डालते हो,
एस्टैब्लिश करते हो, इंटरप्राइज स्टार्ट करते हो, फिर फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट कि जिस तरह की आपके कंपनी में, आपके इंडस्ट्री में, आपके इंटरप्राइज में जो मटेरियल यूज करोगे, वो रॉ मटेरियल कितनी दूरी पे अवेलेबल है, या उस एरिया में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि बहुत दूर में जाते हो तो फिर आपको वहां से रॉ मटेरियल आने में ज्यादा खर्च पड़ेगी। पावर, वहां पर जो मशीन आपको चलेगी, पावर, वो पावर है कि नहीं, मैन पावर दैट मीन्स लेबर है कि नहीं, बैंकिंग दैट मीन्स फाइनेंस आपको इजीली मिल सकता है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन दैट मीन्स इफ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है कि आपका उस लोकेशन से दूसरे जगह भेजा जा सकता है सामान को। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। यू नो वेरी वेल इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस देन यू नीड मनी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। देन इट इज मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही माइट रिक्वायर टू बाय फिक्स्ड एसेट फॉर वर्किंग कैपिटल, एंड proper financial planning must be done to determine the amount of funds needed। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लगेगी, तो कितनी फाइनेंस लगेगी, टोटल कितनी खर्च आएगी, ये भी आपको पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि किस तरह के खर्च होने पर और कहाँ से ये पैसे आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल फैसिलिटीज, include machinery, equipment, building। This decision depend upon the size, scale and type of business activities you want to carry on। आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने बड़ी साइज में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इसके लिए कितनी बड़ी लैंड लगेगी, फिर किस स्केल पर होगा, लार्ज स्केल पर कि स्मॉल स्केल पर कि सेमी स्केल पर होगा, किस बेस पर होगा, और बिजनेस एक्टिविटीज किस तरह से होगा, हम किस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज plant layouts, showing the physical arrangement of machines and equipment needed to manufacture a product। You know very well, जब आप प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, प्लांट बैठाना चाहते हो, देन आप जब मैन्युफैक्चरिंग करोगे किसी भी प्रोडक्ट का, किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, सो दैट फर्स्ट यू हैव टू मेक प्लानिंग, देन ऑन द बेस ऑफ प्लांट यू हैव टू शो फिजिकल अरेंजमेंट, किस तरह का मशीन किस साइड में बैठा है, कितने बड़े एरिया वो मशीन लेंगे, किस तरह से मशीन को लाया जाए और किस तरह से उसे तैयार किया जाए। तो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस यू हैव टू कीप इन योर माइंड बेसिक फैक्टर्स। सो आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ टू स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो आप इस तरह का पॉइंट टू पॉइंट उससे राइट कर सकते हो, नोट्स बना करके उसे लर्न कर सकते हो, और इजीली आप राइट भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज competent and committed workforce। Entrepreneur must find all the requirement of skilled and unskilled worker and managerial staff to perform various activities। You know very well कि जब कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी तो उसमें बहुत सारे स्टाफ लगेंगे, जिसके पास स्किल लेगा, दैट मींस एक्सपीरियंस होगा, और विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी होंगे। यदि स्किल वाले आ जाते हैं देन वो आपके काम को क्या करेंगे, ज्यादा फास्ट करेंगे, एंड स्किल वाले आते हैं तो फिर उसको सिखाना पड़ेगा, तब वो आपको काम करेगा। टैक्स प्लानिंग, द एंटरप्रेन्योर मस्ट ट्राई टू एनालाइज एंड ट्रैक types of taxes, because there are a number of tax laws of the country which affect the functioning of business। टैक्स प्लानिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ कैपिटल, आपके कैपिटल यानी आपका टर्नओवर, आपका अर्निंग पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लॉ, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। और टैक्स की जो भी सिस्टम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के वे में आपको टैक्स देना पड़ता है। देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड अबाउट टैक्स प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट इज सेटिंग अप द एंटरप्राइज। अब बात आती है कि एंटरप्राइज को सेटअप किस तरह से करें। आफ्टर एनालाइजिंग द एबव मेंशन, यानी जितने सारे पॉइंट बताए, इस सारे बातों को मन में रखिए, सारे बातों को एनालाइज कीजिए, सब कुछ प्लानिंग कर लीजिए। देन केयरफुली द एंटरप्रेन्योर दैट मींस मालिक ओनर कैन स्टार्ट द बिजनेस which would mean mobilizing various resources and completing legal formalities। जितनी भी कानूनी तौर पर फॉर्मेलिटीज होती है, एंड यू नो वेरी वेल, जो भी मैंने पॉइंट बताया पॉइंट टू पॉइंट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देन एन एंटरप्रेन्योर, वन ओनर कैन स्टार्ट अ बिजनेस। इस तरह से मैंने दो वीडियो में आपको बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर को, कॉमर्स बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड को मैंने कंप्लीट किया। इफ आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो देन यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट में मैंने डाला है, प्लेलिस्ट से आप देखिए। और देखने के बाद दोनों वीडियो को एक साथ करने के बाद यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी सो दैट यू कैन लर्न इट इजली। आप पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, देखने के बाद आप नोट्स बना करके फिर लर्न कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन, आई जहां तक मुझे बिलीव है, आई बिलीव इट कि आपके कोई भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे, बल्कि किसी भी चैप्टर से, बिकॉज आई हैव गिवन द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन आल्सो। आप टेक्स्ट को भी कहीं दूसरे जगह से नहीं लेना है, टेक्स्ट भी आप स्क्रीन से लीजिए और स्क्रीन से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद बिल्कुल वो आपको पूरे क्लियर होगा, और इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हो
और लर्न भी कर सकते हो और आपकी कोई भी क्वेश्चंस की आंसर नहीं छूटेगी। थैंक यू सो मच।